Welcome back, my dear students, and today we are going to cover present tense, and this is chapter 10 from your book. So, present tense, right? What is present tense? Can anybody tell me what is present tense? Yes, I'm waiting for your answer. Present tense means when any action takes place, action that take place in the present or now are said to be in the present tense, right? It also shows your habitual actions, universal truths, facts or actions done one after the other. It also shows possessions, likes and dislikes. Okay? Just look this example. Simple present is used to talk about an action which happens on a regular basis. We use the present tense to talk about something that is true in the present, right? For example, I am 19 years old. So this is an example of simple present tense. He lives in London. That is also an example of simple present tense. I am a student. This is also an example of simple present tense, right? So simple present tense, सी आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, है ना? तो मैं मंदिर जो है वो हर सुबह जाता हूँ. इट्स शोइंग माई हैबिचुअल एक्शन. द ताजमहल इज सिचुएटेड इन इंडिया. इट्स शोइंग फैक्ट. ठीक है. ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, यानी जब सूर्य ग्रहण होता है, द मून ऑब्सक्योर्स द सन कॉजिंग डार्कनेस. ठीक है. तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. हमें पता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है और चंद्र ग्रहण में क्या होता है. ठीक है. ही ईट्स जंक फूड ऑल द टाइम. तो ये एक फैक्ट है. ओके. नाउ present continuous tense. The present continuous tense or present continuous tense is often used for activities or situations that happening now. Structure of present continuous tense. Positive. ओके. इसमें क्या हो जाता है? पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर लाते हैं. फिर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब में हम आई एन जी यूज़ करते हैं. ठीक है. इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग टू वर्क नाउ. तो आई के साथ हमने एम लगा दिया और जो हमारा वर्ब है उसमें हमने आई एन जी ऐड कर दिया. ही शी इट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब इज लगाया और मेन वर्ब में हमने ing ऐड कर दिया. राइट. नेक्स्ट इज okay, so this is from your book. When using present continuous tense, we add ing to the verb, right? Going on at the time of speaking, actions happenings now. For temporary actions, for habits or action that are used with words like always, constantly, forever. Look at the first example. I am studying for the unit test. Means he is still preparing. The action is going on. Next is I am studying with my uncle for vacations. So this is temporary actions. She is always lying about her homework. So it shows habit कि वो हमेशा झूठ बोलता है ना? Next is present perfect continuous tense. We use the present perfect continuous tense to talk about an action which started in the past and past continuous up to now. Okay? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन अभी भी चल रहा है. जैसे मैं जा चुका हूँ. ठीक है. वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जा चुका हूँ. वो खा चुका है ना? So children, this is an example of not present perfect tense. Okay, by mistake this example is added here. This is an example of present perfect continuous tense. So please add here continuous. That's why na continuity is going on. So this is an example of continuous tense. I have been a teacher for more than 10 years. ठीक है. तो we haven't seen जेनी सिंस फ्राइडे. हमने जेनी को कब से नहीं देखा है? फ्राइडे से नहीं देखा है. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन एट द स्कूल. ओके. तो इसमें टाइम का बोध कराने के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है. ठीक है. अब जैसे हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दैट इज यूज फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पास्ट में शुरू होता है और इसका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से. जैसे द एक्शन जो होता है वो शुरू तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ. जैसे मैं जा चुका हूँ, है ना? जा चुका था नहीं हो रहा है, मैं जा चुका हूँ. ये एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. मैं खा चुका हूँ.
ठीक है. Effect. The effect of past action is still with us. Actions that were just already completed fall under this category. जो अभी अभी तुरंत खत्म हुए. मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ. Time. The action is performed during a time period that still continues. ठीक है. For example, we have lived in Delhi since 2010. हम दिल्ली में 2010 से रह रहे हैं. मतलब हाँ, ये क्रिया अभी भी चल रही है, हम वहाँ पर अभी भी रह रहे हैं. Look at what you have done to your hair. मतलब जो पास्ट में आपने अपने बालों पे किया वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है. ठीक है. We have just finished our lunch. Effect of the action has just been completed. हमने अपना खाना अभी ही खत्म किया है. ठीक है. I have spoken to her earlier this week. ठीक है. Action had taken place in the past but the time period week is continuing. ठीक है. सिंपल सा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे आपका जो होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एस या ई एस ऐड नहीं होगा. मीन्स लेट मी टेल यू, आई, वी, यू, दे, इन सबके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं. ठीक है. लेकिन एस और ई एस किसके साथ ऐड करते हैं? एस और ई एस हम ही, शी, इट, यू, वी, दे के ही, शी, इट के साथ ऐड करते हैं, यू और दे के साथ नहीं. ओके, लेट मी टेल यू, ही, शी, इट. ही, शी, इट के साथ में हम क्या यूज करते हैं? हम वर्ब में एस और ई एस यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन आई, वी, यू, दे के साथ में हम एस और ई एस यूज नहीं करते. तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल. जैसे यहाँ पे है आई है तो आई का फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ में जो वर्ब यूज हुई है ईट, इसका फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया, हमने इसमें एस और ई एस को ऐड नहीं किया. जस्ट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, शी स्केट्स. तो स्केट्स में यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग एस और ई एस ऐड हो गया है ना, क्योंकि शी है तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर वर्ब लेगी, है ना. ही है, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो भी अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा. लेकिन दिस कार भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा. तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा मेन वर्ब होता है उसमें हम एस और ई एस को ऐड कर देते हैं. ठीक है. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, प्रोग्रेसिव टेंस होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. इसमें जो होता है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है एम, इज और आर और इसके साथ में हम वर्ब की ing फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, so let's understand by these examples which is given in your book. The first one is I am eating my food. तो यहाँ पे I के साथ हम हमेशा am यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में और eat में हमने ing को ऐड कर दिया. She is skating now. तो यहाँ पे she के साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, is लेगा. he के साथ में वो भी is लेगा. ठीक है. दिस कार सिंगुलर है तो यहाँ पर भी is होगा. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है बच्चों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैव एंड हैज़. और हैव एंड हैज़ में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. ऑलराइट, विच फॉर्म डू वी यूज? वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, आई के साथ में हैव लगा और वर्ब का जो ईट होता है तो ईट के जो सेकेंड फॉर्म बनता है ईट एट और जो थर्ड फॉर्म बनता है वो हो जाता है ईटन. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैव के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. That's why you all can see here, I have eaten my food. She has skated this week. He has cut the grass. This car has run on electricity. Okay. Let's do the worksheet number 1. Okay. Identify the tense used in the following sentences. Mr. Raman is an early riser. He wakes up at 5 o'clock. So ये जो is आ गया है और ये जो wakes आ गया है, this is an example of simple present tense. Meghna is a good athlete. Simple present tense. Okay. Answer is already written. Okay. Alisha is swimming in the club. So is swimming here means it's a present continuous tense.
Now next, our driver Shrikant has driven very carefully. So this is has, और has के साथ में verb का third form use हुआ है, तो ये आपका present perfect tense हो जाएगा. We have moved to the new school for this year. This is again present perfect tense. Ritesh and Rajesh have stayed together throughout the school. Present perfect tense, right? Generally, we celebrate Diwali in big way. This is an example of simple present. Okay. Birds are flying to their nest. Present continuous tense. Tigers are roaring in the jungle. Present continuous tense. The shower has just ended. Present perfect tense. All right. ना चिल्ड्रन, ये वर्कशीट 2 है. इसमें आपको एक एक बॉय है जिसका नाम है जॉन, और जॉन जो है वो वेजिटेबल सैंडविच बनाना चाहता है अपनी मम्मा के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, उसको स्टेप्स बताना है. सो फर्स्टली चॉप एन अनियन, अ कैरेट, अ cucumber एंड अ टमाटो. ठीक है, एंड अ चिली ऑल्सो. फाइन. Add mayonnaise and grate some cheese. Sprinkle chili flakes and herbs and mix all the ingredients well. Take 2 slices of bread and spread the mixture properly on the bread. Place it on toaster and grill it. Okay? उसके बाद बढ़िया सैंडविच बनके तैयार है और अपनी आप मम्मा को आप सर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 3. द गर्ल्स. अब बच्चों यहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इसके साथ में हैव का यूज करेंगे. और जो मेक होता है ना बच्चों, तो मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बनती है मेड. तो हम फर्स्ट में क्या फिल करेंगे? हैव मेड. ओके, इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, सेकेंड इज वी डैश किरण सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वी के अकॉर्डिंग हम हैव यूज करेंगे. नो, न्यू, नोन होता है बच्चों, तो जो ये थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग हैव नोन. सो इसका हो जाएगा वी हैव नोन किरण सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज द कोच हैज प्रेज्ड आवर गेम एंड योर हार्ड वर्क. योर गेम एंड योर हार्ड वर्क. तो कोच सिंगुलर है तो इसके साथ में हम हैज लगाएंगे. प्रेज का जो थर्ड फॉर्म बनेगा बच्चों, इसी में हम ईडी एज ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रेज्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कपल ऑफ न्यू बुक्स. अ कपल, अब कपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद बुक का अराइव्ड है, अराइव है ना, तो अराइव का जो थर्ड फॉर्म बनेगा दैट इज ARRIVED, अराइव्ड. ओके, हैज अराइव्ड. नेक्स्ट इज I dash the entire works of Ruskin Bond. ठीक है, रेड दिया हुआ है तो I के साथ में हम have का यूज करते हैं, और जो read की थर्ड फॉर्म बनती है read, 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 तो यहाँ पर हम read लिखेंगे READ. Alright. Next is the bank robbers have escaped. So what will be put here? Have. रॉबर्स है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल वर्ब भी लेंगे, प्लूरल ये हैव यूज होगा, और इसके बाद में वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है द मेड हैज पुट. बच्चों जो पुट होता है ना, पुट के तीनों फॉर्म पुट ही होते हैं, पुट पुट पुट. मेड है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ हैज यूज करेंगे. द मेड हैज पुट. ऑलराइट. नाउ शीला हैज टेकन. क्या हो जाएगा बच्चों? हैज टेकन. शीला हैज टेकन. ठीक है, टेक, टुक, टेकन. नेक्स्ट, द बिल्डर हैज कंस्ट्रक्टेड. अब हैज हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट में हम ईडी जोड़ देंगे, CONSTRUCTED, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड. ऑलराइट. नेक्स्ट जो आपको करना है हॉट्स. आदि और श्याम जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. एक साथ वो एक दूसरे के बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं, घर पर और स्कूल पर भी. एक दिन श्याम देखता है आदि टेकिंग अनदर फ्रेंड्स क्रिकेट ग्लव. ठीक है, वो दूसरे दोस्त का क्रिकेट का ग्लव ले रहा है. व्हाट शुड ही डू? अब आप होते तो आप क्या करते? जॉन और आदि को आदि आपस में जो है वो ग्लव्स को शेयर कर लेते. ठीक है, इग्नोर आदि एंड हिज एक्शन. वो आदि को भी इग्नोर करता और उसके एक्शंस को भी. टेल आदि नाइसली दैट एक्शन इज रॉन्ग, है ना, सो दिस इज करेक्ट.
आदि को ये बताना चाहिए कि हमें किसी की भी चीज़ को चुराना नहीं चाहिए, and that he should return the glove to their friend. Thank you so much for watching. Bye everyone.